everyone, and now to everyone. Now we have already discussed about the till chapter number 4 now. So now we are moving to lesson number, not chapter, lesson number 5. If you are having any problem in from lesson 1 to 4, so you can ask me in the comment section of the Google Classroom. Now we will start lesson number 5, the name of the lesson, and that is the noun number for class 7th grammar. Okay, so let's get started our video. And as we know that the noun which donates, if we talk about the singular noun or the plural noun, so whenever we are talking about the singular noun that donates a one person or thing, it's called a singular noun. A noun which donates a more than one person or a thing, that is called a plural noun or a plural number, we can say that. So there are many ways to make singular word into a plural. So in this video we are going to discuss about the singular words and how we will make the word from singular to the plural. What is the singular form of the word and what is the plural form of the word. Hello class. As we have already mentioned that this is lesson 5, so let's get started. Formation of the plurals. So the first rule is that by adding s, like for example, like boy is there, so what is the plural of the boys? That is boys. Cow is there, cow ka plural, cows. So it's the first rule by adding s. Okay, now come on to the rule number second. By adding es to the nouns endings. Okay, nouns ending by adding s or es. Suppose the word is class, brush, match, text, so you have to add es by, अगर जो nouns होती हैं वो या s से end हो, SH से एंड हो, CH, SS एंड X. अगर कोई भी वर्ड इन वर्ड से खत्म हो रहा है, देन आपको वहां पे क्या यूज करना है? ES यूज करना है. दैट बिकम्स ऑलरेडी प्लूरल. लाइक क्लास, I told you the rule that the double S is there now, so ES is there, so that becomes classes. Like text is written there, so after that it becomes texts, because X is there, last word is X, that becomes texts. This is the second rule. Now the third rule, most noun endings in O form the plural by adding es to the singular. Let me tell you in a simple language that जो वर्ड्स की एंडिंग ओ से होती है, एंडिंग किससे होती है? उनकी ओ से होती है. एंडिंग ओ से होती है, उनको भी हम es लगा के प्लूरल बना सकते हैं. लाइक इफ आई विल टेल यू कार्गो, that becomes cargos. Okay, if I will tell you mango, it's a very simple example, that mango, so you can tell me what it becomes. It becomes mangoes. Okay, come to the fourth rule. But fourth rule is that, but in some cases if the noun ending with o, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें नाउन में हम ओ से तो एंडिंग होती है उनकी, पर हम उनमें एस यूज करते हैं. ES की जगह हम उसमें क्या यूज करते हैं? एस. लाइक पियानो, पियानो इज देयर, पियानोज, हमने एस यूज किया. तो ये कुछ केसेस में ही होता है. आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट ओनली इन सम केसेस. ओके, ओनली इन सम केसेस. Like logo, that becomes logos. Any doubt? So let us come to the fifth rule.
So the rule 5 is when the noun is ending with y and preceded by a consonant and form their plural by changes y into ies. दैट मीन्स अगर किसी भी नाउन की एंडिंग यानी वाई से हो रही है तो उसमें हम लोग उसको प्लूरल बनाने के लिए IES ऐड करते हैं उसमें, लाइक बेबी, दैट बिकम बेबीज. ओके, सो बेबी बिकम बेबीज. ओके, प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, यानी उससे पहले अगर वो वाई से तो एंड हो रहे है वो वर्ड, पर उससे पहले एक कॉन्सोनेंट भी होना चाहिए, यानी बी एक कॉन्सोनेंट है. ओके, तो इसीलिए इसमें IES ऐड किया हमने. लाइक स्टोरी, हमने स्टोरी लिखा, स्टोरी यानी वाई से पहले क्या कहते आर है, तो आर भी एक कॉन्सोनेंट है, तो इसका बन जाएगा स्टोरीज. सो द 6th रूल इज दैट अगर वाई है वहां पे पर उससे वाई से पहले वॉबल आता है, अभी तक कॉन्सोनेंट था तो हम लोग IES यूज करते थे, अगर वॉबल आता है तो हम उसके बाद S यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल दैट इज टॉय इज रिटन देयर, सो दैट बिकम्स टॉयज. डे इज रिटन देयर, दैट बिकम्स डेज. ओके, नाउ द 7th रूल इज दैट इफ द नाउन इज एंडिंग विद F और FE, अगर जो वर्ड है वो F और FE से एंड होता है तो उसमें हम लोग VES ऐड करके उसको प्लूरल बना सकते हैं. लाइक काफ, सो दैट बिकम काल्फ्स. वाइफ, दैट बिकम वाइफ्स. हमने VES ऐड करके इसको प्लूरल बना दिया. अगर कोई भी नाउन F और FE से एंड होती है उसमें VES ऐड करेंगे, पर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इनमें. सो कुछ नाउन ऐसी होती है जिनकी एंडिंग तो F और FE से होती है पर उसमें लास्ट में S लगता है. क्या लगता है? S. हम लोग VES नहीं लगाते हैं. लाइक प्रूफ. ओके, सो दैट बिकम्स प्रूफ्स, नॉट बिकम प्रूव्स, PROVES. ओके, सो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे. नाउ द 6th रूल or the 7th, I don't know. A few nouns form their plural by changing the inside vowel of a singular. ओके, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो इनसाइड वॉबल्स यानी अंदर जो वर्ड होता है यानी जो नाउन है उसके अंदर का जो वॉबल होता है उसको चेंज करके प्लूरल बनाती हैं. ठीक है, by changing the heading becomes by changing inside vowel. ठीक है, इनसाइड वॉबल को चेंज करके, लाइक मैन होता है उसमें ना हम लोग S ऐड करते हैं ना ही ES ऐड करते हैं. जो E है यानी वॉबल है इसके अंदर का उसको हम लोग MEN, तो ये प्लूरल बन गया. ये अभी तक सिंगुलर था, अब ये प्लूरल बन गया क्योंकि हमने इनसाइड वॉवल इसमें चेंज कर दिया है. और एग्जांपल लाइक माउस, दैट बिकम्स माइस. ओके, सो देर आर सो मेनी वर्ड्स, यू कैन गो थ्रू द बुक एंड लर्न इट. नेक्स्ट रूल, by adding en to the singular. हमें क्या ऐड करना है? en अगर हम ऐड कर दें सिंगुलर वर्ड में और अ सिंगुलर नाउन में तो हमारा वर्ड प्लूरल बन जाएगा. लाइक एग्जाम्पल इज चाइल्ड. अगर हम इसमें en ऐड कर देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा, चिल्ड्रन. ओके, ऑक्स, दैट बिकम्स ऑक्सन. ओके, now the next rule, by adding S at the end of abbreviations जो होते हैं उनके एंड में S लगा के हम सिंगुलर वर्ड को प्लूरल वर्ड में चेंज कर सकते हैं. ओके, लाइक BA एब्रीविएशंस, हमने यहाँ पे ये एब्रीविएशन लगा दिया. पहले ये सिंगुलर था, अब ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया है. और कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होती है, उनका कोई भी सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है.
always used as plural. ओके कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो हमेशा ही प्लूरल यूज होती हैं, सिंगुलर नहीं होता है. लाइक सीजर्स, सो वी ऑलवेज से दैट सीजर नहीं कहते हम, सीजर सीजर्स. तो पेयर ऑफ सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, टंग्स, पिंसर्स. ओके like breeches, drawer, jeans. So many are there. You can go through the book and learn it well. After that also there are so many rules. You can, those who are not important, the important rules I have already told you, so you can go with the book and learn all the rules. Thank you and have a wonderful day.